India is an agriculture-based country with 263 million of total population having farming as their prime occupation. Farming in India in the present juncture is at crossroads, having reached saturation level in productivity of major crops. We as farmers consistently strive to get greater yield with better quality of crop, and to accomplish this we need to focus majorly on the soil of our motherland. For the past so many years, governments have made efforts to improve facilities in STLs, soil testing laboratories. There are about 1200 soil testing laboratories in the country at district level, but from which only 400 labs can provide you with the analysis of micronutrients and with chemical fertilizer and pesticide. Lack of knowledge in the farmers, the soil fertility has depleted in the past few years. 1200 soil testing labs can analyze only 1.2 crore samples in 1 year, equal to 3.6 crore in 3 years, which is only 25% of total soil health card to be generated. Creation of new infrastructure would require 3600 new soil testing labs, which may be costing rupees 2160 crore. Also, the quantitative estimation of micronutrients is missing. Government of India is investing thousands of crores of subsidy on chemical fertilizers. The ultimate purpose has not solved. This has led to stagnation in productivity of various crops. Necessity therefore was felt to develop a rapid soil testing kit, which gives quantitative results in quickest possible time and provides access to farmers at their doorstep. Efforts were made by Indian Council of Agriculture Research through its premier research institute for soil science research, that is, Indian Institute of Soil Science situated at Bhopal. These efforts have borne fruits in the development of an innovative technology in the form of Mrida Pariksha. Assume the shape of a mini lab as it can analyze 10 most important soil parameters. मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल ने एक मृदा परीक्षक का विकास किया है। मृदा परीक्षक एक लघु प्रयोगशाला है जिसकी मदद से हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करके उचित मात्रा में फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर सकते हैं। मृदा परीक्षक से हम पीएच मान, लवणता, कार्बनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, जिंक, आयरन तथा बोरोन की मिट्टी में उपलब्ध मात्रा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये यंत्र हमें खाद की मात्रा डालने की जानकारी भी देता है और ये जानकारी किसान भाइयों के अपने मोबाइल पर तुरंत प्राप्त की जा सकती है। Letter to the Agriculture Minister from the Chemicals and Fertilizer Minister, Mr. Hansraj Ahir. This mini lab will change the whole scenario for the farmers in India. Soil Health Card Mission will help farmers to maintain the fertility of the soil and give efficient crop yield, and also help them save money and time. It will help the Government of India in huge amount of subsidies spent on fertilizers, as more than 72,000 crores is spent on subsidies, which includes 50% of imported fertilizers. Mrida Pariksha should be provided at Gram Panchayat level, covering maximum regions, areas, so that every farmer gets the benefit of this advanced mini lab. It will also help in providing employment to the youth at the village level. This mini lab is made as per the guidelines of the central government and the rates are fixed by the government itself. This mini lab gives quantitative test results in exact numerical value, unlike any other kit which provides only qualitative test results, that is low, medium and high. It provides crop and soil specific fertilizer recommendation directly to the farmer
on his mobile phone through SMS. Mrida Parikshak comes with a Smart Soil Pro, shaker, weighing balance and hot plate for determining the soil parameters. This mini lab is equipped with GSM facility, memory card for data generation and GPS. The operation of this mini lab is very user friendly and can be operated by young educated farmer or rural youth with short training. This advanced mini lab, which costs Rs 72,000, can completely replace the government soil testing labs costing up to 50 to 60 lakhs. Soil is to be collected using the soil sampler, then is weighed using a weighing balance, after which the soil is treated with a reagent to extract the nutrients from the soil. A special device called the shaker is used to shake the solution for proper mixing. Then, by using a filter, the solution is filtered out. The solution is then transferred to another tube where the reagent is added again to develop the desired color. After this, the solution is transferred to a cuvette and that is placed in the Smart Soil Pro for analysis and hence providing the quantitative analysis of the soil displaying on the screen. दोस्तों, मैं आपके सामने मृदा परीक्षक जो कि एक लघु प्रयोगशाला है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि ये लघु प्रयोगशाला मृदा परीक्षक जो आपने आज अपने प्रदर्शन में ली है, और इस लघु प्रयोगशाला से आप अपने खेत की मिट्टी या किसी भी मिट्टी के नमूने की उसकी उर्वरता की जांच कर सकते हैं। इसमें इस लघु प्रयोगशाला में से आप उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा सूक्ष्म तत्व जैसे कि जिंक, बोरॉन तथा आयरन, पीएच मान और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तथा मिट्टी का कार्बन इन सभी पैरामीटर्स की जांच कर सकते हैं। और इस मृदा परीक्षक लघु प्रयोगशाला की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस जांच के आधार पर आप अलग अलग फसलों के लिए और अलग अलग किस्म की मिट्टी के लिए आप फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन यानी कि उर्वरक की अनुशंसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपके प्रदर्शन में ये मृदा परीक्षक आए तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इस मृदा परीक्षक में एक ये मैनुअल आपको मिलेगा, आपके जो किट आपको मिलेगा उसमें ये मैनुअल मिलेगा। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि सबसे पहले आप इस मैनुअल को अच्छी तरीके से पढ़ें, और क्योंकि इस मैनुअल में मृदा परीक्षक के साथ आपको क्या क्या मिलेगा ये इसमें दर्शाया गया है। मैं आपको दिखा दूं कि कंपोनेंट्स ऑफ मृदा परीक्षक, आप जरा इसको दिखाइए कि कंपोनेंट्स ऑफ मृदा परीक्षक, इस मृदा परीक्षक में आपको ये 4 यंत्र मिलते हैं। ये 4 यंत्र, एक हमारा स्मार्ट सॉइल प्रो है, जिस स्मार्ट सॉइल प्रो में जब आप अपना सोल्यूशन रखेंगे एक क्यूवेट में डाल के, तो वो स्मार्ट सॉइल प्रो आपको आपके अलग अलग जो नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम है उसके जो जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे बटन के आधार पर, वो आपको उसके रिजल्ट्स देगा। और इसी मृदा परीक्षक स्मार्ट सॉइल प्रो में के आधार पर आप उर्वरक अनुशंसा भी ले सकते हैं। दूसरा हमारा है शेकर, तीसरा है हमारा वेइंग बैलेंस और चौथा है हमारा हीटर। तो ये 4 यंत्र आपको इस मृदा परीक्षक में मिलेंगे। और इस मृदा परीक्षक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो मिट्टी का नमूना आप लेते हैं, इससे पहले जो सॉइल टेस्ट किट्स आपने देखे होंगे उसमें मिट्टी का नमूना आप या तो स्कूप से लेते हैं या कोई दूसरे वॉल्यूमेट्रिक आधार पे नमूने लिए जाते हैं, लेकिन हमारे मृदा परीक्षक में एक आपको छोटा सा वेइंग बैलेंस मिलता है और आप मिट्टी के नमूने की सही मात्रा ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको एक शेकर दिया जाता है, जो कि शेकर एक विशेष तरीके से हम लोगों ने जो मिट्टी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो इस शेकर को हम लोगों ने कस्टमाइज़ किया है। इस शेकर की शेकिंग या इसका जो वाइब्रेशंस पर मिनट है, ये इस तरीके से हम लोगों ने एडजस्ट किया है कि ये उपलब्ध मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा सूक्ष्म तत्वों की उपलब्ध मात्रा आपको दे देता है। हॉट प्लेट का इस्तेमाल आप अवेलेबल बोरॉन को
करने की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। इसके इन 4 यंत्रों के अलावा आपको केमिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे बॉटल्स मिलेंगी, लगभग 35 आपको बॉटल्स मिलेंगी जिसमें अलग अलग केमिकल्स रखे गए हैं। इन केमिकल्स में आपको अलग अलग, जब आप कोई भी एनालिसिस करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस एनालिसिस में हर एक एनालिसिस के साथ आपको मैं दिखा दूं जरा, जैसे कि अगर आप फास्फोरस कर रहे हैं तो फास्फोरस के प्रोसीजर में आपको ये बॉटल नंबर लिखे हुए हैं, किस बॉटल से आपको कितना केमिकल्स लेना है और आपको कैसे किसी भी पोषक तत्व की मात्रा की कैसे जांच मिट्टी में करनी है, वो इसमें पूरा लिखा हुआ है। आपको सिर्फ इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करना है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस मृदा परीक्षक में जो फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन हम करते हैं, ये हमारा जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स है, जो 1967 से हमारे देश में कार्य कर रहा है और इसकी लगभग 20 ब्रांचों ने हमारे पूरे देश में अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग फसलों में समीकरण निकाले हैं, जो कि लक्षित उपज के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की उर्वरक की अनुशंसा करते हैं। हमने इन्हीं समीकरणों को अपने मृदा परीक्षक में डाला हुआ है तथा इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो फर्टिलाइज़र अनुशंसा यानी कि फर्टिलाइज़र जो रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगी वो काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई हैं तथा लक्षित उपज के लिए हैं। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि लक्षित उपज के लिए हमने जो मृदा परीक्षक में कुछ फसलें हैं जिनकी की लक्षित उपज ये ली हुई है। आप इस मृदा परीक्षक में अगर टेबल नंबर 1 को देखेंगे इसके मैनुअल में, तो आप ये देख लेंगे कि अलग अलग, जैसे कि आपकी चिकपी है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, मेज है, राइस है, तो क्या लक्षित उपज आपको प्राप्त होगी अगर आप मृदा परीक्षक के द्वारा जो अनुशंसा दी जाती है उसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस मृदा परीक्षक में जो सूक्ष्म तत्व हैं जैसे कि बोरॉन, आयरन और जिंक, इसकी भी अनुशंसा हम सिफारिश करते हैं और ये अनुशंसा जो क्रिटिकल लेवल है उसके आधार पर ही की जाती है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा मृदा परीक्षक एक ऐसी लघु प्रयोगशाला है जो हमारे संस्थान भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने, हम लोगों के 8 लोगों की टीम थी और हमारे नागार्जुन एग्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, इनके सहयोग से हम लोगों ने इसको विकसित की है। और इस लघु प्रयोगशाला से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लघु प्रयोगशाला आप कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। इससे जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं वो बड़े क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और रिजल्ट्स जो हैं बड़े स्टेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आप एक ही सैंपल को 4 बार करेंगे तो आपको एक ही रीडिंग मिलेगी, अलग अलग रीडिंग नहीं मिलेगी। तो ये है हमारी सबसे बड़ी सफलता तथा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए ये मृदा परीक्षक इस्तेमाल करते वक्त। कुछ केमिकल्स इसमें ऐसे हैं जो कि एसिड्स हैं, हैजार्डस हैं, उसके ऊपर हमने चेतावनी लिखी हुई है। तो आप जब भी अपने इसमें एस्टिमेशंस करें किसी भी पैरामीटर का, तो जो भी इसमें इस मैनुअल में जो सावधानियां या जो प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं या जो इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है वो भी आपको बिल्कुल इस किताब के आधार पर ही फॉलो करना है। अगर इसमें लिखा है कि आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की ट्यूब का इस्तेमाल करें तो आप उसी वॉल्यूम की ट्यूब का इस्तेमाल करें, न कि किसी दूसरे वॉल्यूम की ट्यूब का इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और भी बताना चाहूँगा कि ये मृदा परीक्षक से आप निश्चित तौर पे अपने मिट्टी के जो नमूने की जांच कर सकते हैं तथा उर्वरक अनुशंसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी मिट्टी के नमूने की जांच कर रहे हो, जहाँ से भी आपके पास नमूना आया हो, आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो नमूना सही तरीके से, सही मेथड को इस्तेमाल करते हुए कलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर नमूना गलत होगा तो आपकी सारी मेहनत, आपकी उर्वरक अनुशंसा भी बेकार चली जाएगी। नमूना लेने की सही विधि हमारा जो ये मैनुअल है, इस मैनुअल के अंदर भी हमने लिखी हुई है। अगर आपको इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं है तो ये एक सॉइल सैंपलिंग प्रोसीजर करके यहाँ पे एक सेक्शन है और इस सेक्शन को आप देख लें। इसके अलावा भी आपको बहुत सी जगहों पे सही मिट्टी का नमूना कैसे सही तरीके से लिया जाए उसकी जानकारी मिल जाएगी।
लेकिन ये सुनिश्चित करना मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि जो भी मिट्टी का नमूना आप अपने मृदा परीक्षक में टेस्ट कर रहे हैं वो नमूना सही तरीके से लिया गया हो और सही तरीके से उसको तैयार किया गया हो। सिलेंडर से आपको चीज़ लेनी है, वहाँ आप मेजरिंग सिलेंडर से ले सकते हैं। और हम इसके साथ, इस किताब के साथ आपको एक स्कीम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस स्कीम के आधार पर अगर आप एनालिसिस करते हैं तो दिन भर में 20 से 25 सॉइल सैंपल्स को आप पूरी तरीके से 10 पैरामीटर के लिए एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है ये मृदा परीक्षक आपने ये मृदा परीक्षक लिया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको यूज़ करेंगे और अपनी ही नहीं बल्कि और भी अपने जैसे कई साथियों की मिट्टी का परीक्षण करके और सॉइल हेल्थ कार्ड को बनाने में हमारे देश का और हमारे देश की सरकार का जो एक उन्होंने बड़ा काम लिया हुआ है उसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। Soil sampling. Soil sampling is one of the most important steps in any soil testing program. A non-representative sample may vitiate the entire results. Soils vary from place to place. In view of this, efforts should be made to take the samples in such a way that it is fully representative of the field. Selection of a sampling unit. A visual survey of the field should precede the actual sampling. Note the variation in slope, color, texture, management, and cropping pattern by traversing the field. Demarcate the field into uniform portions, each of which must be sampled separately. Never collect the samples in line. Instead, sampling at several locations in a zigzag pattern ensures homogeneity. Precautions: do not sample unusual area like marshy, old path, old channel, old bunds, area near the tree, and site of previous compost piles. Avoid any type of contamination at all stages. Soil samples should never be kept in the store along with fertilizer materials and detergents. Where crops have been planted in rows, collect samples from the middle of the rows so as to avoid the area where fertilizer has been placed. Sampling procedure. Scrape away surface litter with the help of a broom. First, dig a V-shaped cut up to 15 to 20 centimeters using a plow and remove rest of the soil. Samples are taken with the help of a soil sampler auger from plow depth and collected in the bucket. For shallow-rooted crops, collect samples up to 15 to 20 centimeters depth. For deep-rooted crops, collect samples up to 30 centimeters depth. Repeat the procedure for collecting the soil from selected spots on the field. Transfer the total collected samples from the bucket on a piece of plain sheet and mix thoroughly. Spread the soil evenly and divide it into 4 quarters. Reject the 2 opposite quarters and mix the rest of the soil again. Repeat the process till left with about half kg of the soil. Collect it and put it in a clean cloth bag. The bag used for sampling must always be clean and free from any contamination.
इसमें सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है पीएच। पीएच मेजर करने के लिए ये मेनू बटन दबाएं। मेनू में आपको 10 पैरामीटर्स दिखाई देंगे और उसमें जो आपका पैरामीटर है पीएच, उस पे ऑलरेडी ये एरो से वो सेलेक्टेड है। ये सेलेक्ट होने के बाद इसमें एंटर प्रेस करें। उसके बाद आएगा सेलेक्ट द फार्मर। फार्मर उस जगह पे भी आप एंटर करेंगे। पीएच के लिए हम ये प्रॉब यूज करेंगे और उसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। पीएच इलेक्ट्रोड लगाने के बाद सबसे पहले इलेक्ट्रोड को 2 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो कि बॉटल नंबर 1 और 2 में दिया गया है उसमें डालें और उसको मेजर करें मृदा परीक्षक की मदद से। उसके बाद सॉइल को 10 ग्राम वे कर लें बीकर में और उसमें 20 ml डिस्टिल वाटर डाल के 10 मिनट तक इंटरमिनेट स्टीयरिंग करें और उसके बाद पीएच प्रॉब से रीडिंग लें। पीएच मेजर करने के बाद प्रॉब को निकालें और डिस्टिल वाटर से अच्छे से साफ करके उसको टिश्यू पेपर से वाइप करें और हमेशा इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से अच्छे से वॉश करके ही अगले सैंपल में डालें। पीएच मेजर करने के बाद उसी सैंपल से ईसी मेजर करना है। उसके लिए सैंपल को 10 मिनट तक इस स्थिति में छोड़ दें। उसके बाद आप ईसी प्रॉब को लें और उसको मृदा परीक्षक से कनेक्ट करें। अब हम मृदा परीक्षक के स्क्रीन में दिए गए ईसी पैरामीटर पर कर्सर को लाएंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट फार्मर पे जाएंगे, उसको भी एंटर करेंगे और ईसी मेजर करेंगे सॉइल का। इस सॉइल का ईसी 0.33 मिलीसाइमन पर सेंटीमीटर है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन मेजर करने के लिए 0.5 mm सीड से छानी गई सॉइल को लें और 0.5 ग्राम सॉइल को बीकर में ट्रांसफर करें। इसके बाद 4 ml सॉल्यूशन को बॉटल नंबर 4 से सिरिंज की सहायता से लें और बीकर में ऐड करें। इसके बाद 8 ml बॉटल नंबर 5 से लें और उसको ध्यानपूर्वक ऐड करें। इस बात का ध्यान रखें कि बॉटल नंबर 5 में एसिड है, इसलिए प्रिकॉशन लें जब उस एसिड को ऐड करें। उसके बाद बीकर को आधे घंटे तक छोड़ दें। इसके पश्चात उसमें 38 ml डिस्टिल वाटर डाल दें और इसके बाद उसको फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद सॉल्यूशन को क्यूवेट में लें। आपको जो भी पैरामीटर सेलेक्ट करना हो वो मृदा परीक्षक पे पहले सेलेक्ट करके एंटर कर लें। उसके बाद फार्मर को सेलेक्ट करके एंटर कर लें। उसके बाद डिस्टिल वाटर को डाल के इंस्ट्रूमेंट को 0 सेट करें। 0 सेट करने के बाद जो ब्लैंक होगा उसको क्यूवेट में डाल के उसको प्लेस करें और एंटर करें। तब इंस्ट्रूमेंट बोलेगा पुट द सैंपल एंड एंटर और तब आप अपने सैंपल सॉल्यूशन को फिर क्यूवेट में डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आपके सॉइल का एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा। सॉइल फॉस्फोरस का एस्टिमेशन करेंगे और इसके लिए सबसे पहले 1 ग्राम सॉइल सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लें और उसमें बॉटल नंबर 6 से 1 पिंच चारकोल डालें। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो सॉइल आपने लिया है उसका पीएच क्या है। अगर पीएच सॉइल का मोर देन 6 है तो उसमें बॉटल नंबर 7 से 20 ml रिएजेंट डालें और आधे घंटे शेकिंग करें। अगर
अगर आपके सॉइल का pH लेस देन 6 है तो बॉटल नंबर 8 से 10 ml सोल्यूशन डालें और उसको 5 मिनट शेकिंग करें। शेकिंग के बाद दोनों सॉल्यूशंस को आपको फ़िल्टर करना है और फ़िल्टर करने के बाद जो आपको क्लियर फिल्ट्रेट मिलता है उसमें से 5 ml लें। ये प्रोसीजर आपको ब्लैंक में और सॉइल में दोनों में रिपीट करना है। क्लियर फिल्ट्रेट लेने के बाद उस 5 ml में आपको बॉटल नंबर 9 से 1 ml ऐड करना है। अगर आपके सॉइल का pH लेस देन 6 है तो बॉटल नंबर 9 से सॉल्यूशन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब बॉटल नंबर 10 से 0.264 ग्राम पाउडर एक 50 ml ड्राई बीकर में वे कर लें और उसके बाद 50 ml मेजरिंग सिलेंडर की मदद से 50 ml सॉल्यूशन बॉटल नंबर 11 से ले लें और उस बीकर में डाल के पाउडर को अच्छी तरीके से ग्लास रॉड की मदद से डिज़ोल्व कर लें। अब इस सॉल्यूशन में से 4 ml सीरिंज की सहायता से लें और जो हमारा इनिशियल सॉइल फिल्ट्रेट था उसमें ऐड करें। अब उसके बाद कलर डेवलप होने के लिए इसमें 25 ml तक डिस्टिल वाटर को ऐड करके वॉल्यूम बना लें। इसका कलर ब्लू होगा और उसकी रीडिंग मृदा परीक्षक से ले लें। आज हम सॉइल अवेलेबल पोटेशियम करेंगे। इसके लिए पहले 2 ग्राम सॉइल 50 ml सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लें और एक ब्लैंक ले लें जो कि विदाउट सॉइल होगा। इसके बाद इसमें 10 ml सॉल्यूशन बॉटल नंबर 12 से मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से ऐड करें। अब इस सॉल्यूशन को शेक करें 5 मिनट तक। 5 मिनट शेक करने के बाद इसे फिल्टर कर लें